openers. Narendra Naik and Govind Satadekar will be looking to give a good start, and the lineup goes of the Riddhi Warriors as follows: Swapnesh Velip, Kapil Velip, Rupesh Velip, Vaibhav Velip, Govind Satadekar, Navdeep Gaonkar, Narendra Naik, Navnath Gaonkar, Raju Chipkar, Suraj Velip, Rudresh Naik, Pritam Gayak, the captain, Rajesh Gaonkar and Mahadev Gaonkar. That's the team lineup for Riddhi Warriors, who are batting first. Rajesh has been given the ball, who will be Raghunath, correction. Bhau is the bowler, and facing him will be Narendra Naik on strike with the white cap and the white skins on the forearms. Pleasant atmosphere here. And look at the applauses. Are you ready? Yes, we are. It's the moment of the truth. Within few seconds, the first delivery of the first semi-finals will be bowled by Bhau. Lovely shot. Oh, straight to the fielder. Slight a bit of a fumble there. That would have been a catch. He was in two mind to. He wasn't ready, absolutely. That would have been a first ball, first breakthrough, and Bhau slightly disappointed. Look at the hands on the hips. Rajesh Gowdy just letting it go. That's the reason why they say you have to be ready for every ball. And what an opportunity. The very first ball, it was played in the covers in the point region. Played straight to Rajesh. And just got off the mark. Very risky single this was for the Warriors to begin with. Lovely shot straight down the ground, and that will go absolutely out of the park for sure. It's a boundary called from the official umpire. The first boundary coming up here. Beautifully timed, and just not taking any time to get set. And how the ball is coming to the bat. Straight away, bang, she goes. And that's the beauty of the power play overs. Wonderful striking this is. Absolutely brilliantly timed. The ball coming right out from the middle of the bat. Oh, just having the ball left and well guessed rightly so from Govind. He's absolutely wonderful batter. The very first ball, bang, she goes for the boundary, and then just having a good look at that, good eyes on the ball. A lovely shot. The ball is up in there, and the catching opportunity. Catches is the call from the bowler, and he takes it. Rishikesh Gowdy takes a brilliant catch with the eyes locked on the ball. 88 number jersey, and that's the first dismissal of the wicket of Riddhi Warriors as Govind Satadekar is departed after scoring 4 runs. So this is the 6th wicket for Raghunath Bhau with the wicket of Govind Satadekar. Gave a good start. He needed to capitalize and just maybe that was the combination. Narendra Naik will be looking for singles and twos, and they have asked Govind to go aerial. Take the shots, costing the air, and what a good catch taken by Rishikesh Gowdy. Golu. Wonderful, not easy with that up and down in the ground, but still eyes locked and the hands taking that. A beautiful catch. Navdeep Gaonkar walks in at number 3 for the Warriors. Early breakthrough here for Bhau in the very first over. Lovely shot, beautifully, and the ball has gone past right in the covers. Slight bit of a deflection there for Prajot, but the ball has been fielded by Vaibhav. Brilliant that was, and 2 runs easy. Absolutely brilliant running between the wickets. Very quick, in spite of that fumbling. Pushed hard for 2 and easily picked up. Navdeep and Narendra. Narendra is a wall for the Warriors team from Bali. Bhau continues right onto the stumps. You miss, I hit, says Bhau. This is the second wicket, the very first over, and what a way to bowl. Absolutely wonderful, right bang on the target. The off stump is
down. The second wicket goes down of Riddhi Warriors. It was Navdeep, who was definitely playing good in the covers. He picked up 2. But now, what a game plan from Bhau. Absolutely, I welcome Ashokji Naik. 7th wicket of the tournament for Bhau. Absolutely picked up 2 in the very first of the power play. After winning the toss, upping the ball for them. Maybe that's the reason why the captain of Mandrim Boys, Ambaji, wanted to field first. Put pressure. Not allow them to go past 50, 60. But the team is loaded with talented batters. With the Warriors, even the tailenders can fire some big ones. That is exactly how they bat. Rupesh Velip joins in at number 4. And still the first over in progress. Bhau will be very happy and excited with providing the first breakthrough in that to 2 crucial wickets. First off, Govind, who was dismissed for just 4 runs, and then Navdeep, after getting 2 runs to his credit. Rupesh Velip, left hand, right hand combination will be good for the batting team. It will be advantage for sure. Taken round the wicket. A lovely shot. Oh, the ball is not going anywhere. What a wonderful over comes to an end. The very first over gone by. 8 runs on the board for the loss of 2. Riddhi Warriors. Once again, a quick reminder for the audience who are just joining us live. Karim Cricketers organizes the 10th hardball tennis cricket tournament, Panchayat Municipality, the rainy cricket, of course. Since Friday, the actions are live on this beautiful ground, and today I'm joining our professional scorer, Ashokji Naik, who is coming all the way from Bandha, Maharashtra. Amchi Mati Tumchi Mansa. And of course, we have with us on the stage some good guest well-wishers of Karim Cricketers. Of course, not to forget the architecture. Sanjit Kandolkar and his entire team doing a fantastic job to make this tournament a great grand success. Beginning of the second over. Rushikesh Gowde with a good line, slightly bit of a rise in the bounce there. But played it away. Narendra taking the responsibility of batting because he knows after the fall of 2 wickets, someone has to be there, stationed, and has to play a long and sensible inning. And that is exactly what Narendra Naik is doing. He's playing the role of a wall, like normally Rahul Dravid and now Virat Kohli, they play. But what plans do this new batter, Rupesh Velip's got? He's a left-hand batting sensation. As you can see, a little bit of change in the fielding as the left hand against the striker. Lovely shot right up. Absolutely. Bang, she goes out of the park for sure. Unleashes the full power, full strength into the shot. And look at that trajectory of the ball. Absolutely disappeared. The fielders look like the spectators and the spectators look like the fielders with this particular shot. On the rise, absolutely beautiful. And that is the strong point of Rupesh Velip. Anything fuller on, half volley or juicy full tosses, he will not spare any moment, any chances, because this is the second over of the power play. And what a hit that was. Absolutely clinical. Pure timing from Rupesh Velip. Things will not be easy here for this bowler, Rishikesh. Round the wicket, who took a brilliant catch in the very first over and dismissed Navdeep. Dismissed Govind, correction. Oh, well bowled. Good comeback. Good reply here from Rishikesh. A bit of a good line delivery. The ball was slightly drifting down to the leg side. Beautiful line to make a comeback. This is exactly what we see when two talented teams and two talented players are face off. One will be a big shot, another will be a dot ball. And this is good tug of war between Rishikesh and Rupesh Velip. Once again, half volley is not the ball to Rupesh Velip. Once again, she goes big, huge, high and handsome. It's a no ball and 6 runs this time.
Same ball and the punishment is same of 6 runs, the maximum. And this time it's an advantage for Rupesh Velip. It's a no ball and that will be afraid. What an advantage here, and the score is quickly moving up to 21 runs with the help of 22. With the inclusion of no ball as well. Absolutely nice speeding up. The runs are coming thick and fast here for Riddhi Warriors. And we can see the smile on the face of Dinesh Naik. He's excited as well because he knows the team is being absolutely loaded with talented batters. Even the tail enders can fire some big shots. And that is the team of Riddhi Warriors. But slightly there is definitely a pressure on Rishikesh. And how he deals with this pressure now, we'll have to watch. It's a no ball and a free hit. Score is 22 for the loss of 2 in the second over. Round the wicket, 88 number jersey, Rishikesh will be bowling to Rupesh Velip. Oh, lovely. This time slightly across, but the ball will go right in the gap. One bounce to the fence. Oh, he's going hammer and tongue. Absolutely. He's just cutting loose. Look at the timing. Look at the eye-hand coordination of Rupesh Velip. Is absolutely brilliant. After the fall of the 2 wickets, he's not taking any pressure at all. This is exactly how you need to bat in the limited overs. And of course, it is 8 overs match and the last over the power play. And what a power hitting this is from Rupesh Velip. Absolutely. Timing to the perfection. Rishikesh very expensive. But it was just 8 in the very first over with the 2 wickets. A lovely good hit. Should be just 2 and yes, it is comes the signal. And these 2 runs will take the score up to 28 runs on the board. We have with us Akhil Parab, the renowned scorer. Big name. They call him the computer scorer of Goa. Slow one and worked well straight to the field. So 20 runs coming up from the second over. Completion of 2 overs, score is 28 for the loss of 2. And now we have a change in the commentary. It will be to Ashok Ji Naik in Hindi or maybe in Marathi. धन्यवाद नदीम। 2 ओवर का पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। सामने बल्लेबाजी कर रही है रिद्धि वॉरियर्स बाड़ी क्रिकेट टीम। थोड़ा सा महंगा ओवर रहा। पहला ओवर अच्छा रहा, पावर प्ले का 8 रन निकल। दूसरा ओवर ऋषिकेश के गेंदबाजी पर बिल्कुल हमला बोल दिया बल्लेबाजों ने। 20 रन 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 28 2 विकेट के नुकसान पर। और बॉलिंग में परिवर्तन, प्रवीण सावंत आ चुके हैं जो और एक कटर गेंदबाज। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर निकले, हल्के से खेला गेंद को कवर पॉइंट पर। राजेश गावड़े गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन बड़े आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सदगिरी नाइक और शिवशरण उर्फ बाबू दाबोलकर, यह 2 अंपायरों की जोड़ गोली मैदान पर। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ अखिल परब और बहुत लंबे अरसे के बाद नदीम अहमद जुड़ चुके। एक बहुत ही बेहतरीन अंग्रेजी की कमेंट्री, हिंदी और अंग्रेजी की कमेंट्री। लेकिन जब जब मैं नदीम के साथ अखिल होता हूँ तो हमेशा अंग्रेजी बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हैं। प्रवीण सावंत राइट आर्म ओवर द विकेट। सामने लेफ्ट हैंडर बैटर रूपेश वेलिप। ऑन साइड पर हल्के से ढकेला गेंद को फाइन लेग की तरफ, सिंगल बढ़ेगा स्कोर के खाते में। देखना होगा रन के लिए दौड़ जरूरत है। थोड़ी सी देरी से ओवर थ्रू निकला था, बैकअप हो रहा है मिड ऑन पर। रघुनाथ उर्फ भाऊ गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। 30 पर पहुंचा टोटल स्कोर। दोनों टीमों के बहुत से सपोर्टर आ चुके हैं। हमारे आदरणीय सर और एक बिल्कुल करीबी दोस्त सर महेश कोनाडकर, वो भी दिखाई देते हुए। महेश सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। मांद्रेम पंच सर, महेश जी आपका स्वागत है।
बैकफुट पर निकले इस बार, बढ़िया शॉट ऑन साइड पर, स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ पहला रन बड़ी तेजी के साथ लिया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट फील्डिंग में रोहित मांजरेकर, और जब तक गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक विकेट कीपर के हाथों में एक सुंदर थ्रो, 2 रन बड़ी तेजी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। रिद्धि वॉरियर्स बायली क्रिकेट टीम की ओर से उनके सर्वे सर्वा सर दिनेश नाइक और बिल्कुल और हमारे करीबी दोस्त आशीष नाइक, जिनको बिल्कुल जापरू के नाम से ज्यादा जाना जाता है, वो आशीष नाइक, दिनेश नाइक वो भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छी गेंद बोल्ड हुए उस पर, बिल्कुल गेंद के लाइन से बीट हुए और एक कामयाबी मिलती हुई यहाँ पर। आइए सर, आपका स्वागत है महेश सर और दिनेश नाइक सर, आपका भी बिल्कुल स्वागत है। आइए तशरीफ रखिए मंच पर। बिल्कुल आप हमें पता है आप आपके टीम के साथ है जरूर, लेकिन आइए सम्मान है सर आपका ये। तो एक अच्छी विकेट कहीं ना कहीं साझेदारी बन रही थी मैदान पर। नदीम सर बिल्कुल 8 ओवर का मैच है, 80-90 का टोटल होना चाहिए और आपके साथ सर बहुत मजा आता है कमेंट्री में। हरीश काकोडकर और एक बिल्कुल जो कि बेहतरीन तुषार नाइक और एक अक्षय महाले है, नीलेश पारसेकर है, बिल्कुल अलग अलग अंदाज है, अलग अलग अपना कमेंट्री का अंदाज होता है, लेकिन आप सभी के साथ बिल्कुल मज़ा आता है। और मैं भी इतने बड़े दूर से आता हूँ और आप इतना मुझे प्यार देते हो, शायद ये मेरे लिए बिल्कुल फख्र की बात है। नए बल्लेबाज मैदान पर राजेश गावकर शायद पहले दिन में नहीं थे, एक कमी महसूस जरूर हुई थी। ऑलराउंडर खिलाड़ी है, सामने मांद्रेम बॉयज भी बहुत ही अच्छा खेल कर चुके हैं, गेंदबाजी कर रही है, फील्डिंग कर रही है, बल्लेबाजी कर रही है। पहले मैच में लगभग बिल्कुल कांटे का मुकाबला रहा था, लेकिन उसके बाद मुड़कर नहीं देखा है मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम ने। और प्रवीण सावंत अपने बॉलिंग मार्ग पर ऑफ ब्रेक, लेग ब्रेक, बिल्कुल उनको देखकर नदीम सर मुझे मनोज प्रभाकर की याद आती है भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से। बिल्कुल जो ऑफ कटर लेग कटर करते थे हमेशा, वो मनोज प्रभाकर के बिल्कुल याद उन्हीं के साथ जो उनकी गेंदबाजी देखकर बिल्कुल मन में ताज़ा होती है। इसी बीच में अपने बॉलिंग मार्ग पर 10-12 कदमों के साथ से और न्यू बैटर, नए बल्लेबाज राजेश गावकर मैदान पर। बैकफुट पर निकले, हल्के से खेला गेंद को ऑन साइड पर, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सिंगल, आते आते 1 रन के साथ अपना खाता खोला और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर का मैच है, सेमीफाइनल का मुकाबला है, थोड़ा सा प्रेशर है दोनों टीमों पर, क्योंकि सेमीफाइनल का मुकाबला अलग होता है और 80-90 का टोटल मायने रखेगा। शैलेश निगुड़कर सर, आपका भी स्वागत है। नितेश कांबळे, आपका भी स्वागत है। कई दर्शक जुड़ चुके हैं इस मैदान पर पहले दिन से, आप सभी का स्वागत है। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथि, आपका भी इस खर्रम क्रिकेटर्स की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक हार्दिक स्वागत। ओवरपेस गेंद इस बार उड़ाया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन पर, गेंद हवा में और शांताराम भांबल जो कि लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर सामने थोड़ा सा ऊपर लगे इस बार बल्ले पर गेंद और एक सफलता मिलती हुई मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम को। एक अच्छी इनिंग, 2 छक्के लगाए, 19 रन बनाए, 33 रन 4 विकेट पर। 8 ओवर का मुकाबला है, बहुत ही शानदार क्रिकेट इस टूर्नामेंट के साथ देखने को मिला। गुमटेश्वर मरगांव हो, असनोडा क्रिकेट टीम हो, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी इस मैदान पर खेल कर गए और आखिरकार 4 टीम के बीच में मुकाबला। एक शानदार ओवर प्रवीण सावंत का, सिर्फ 5 रन और 2 विकेट चटकाए। कहीं ना कहीं मांद्रेम बॉयज ने इस ओवर के साथ मैच में बिल्कुल जो कि कमबैक किया। देखना होगा, फिलहाल आने वाला समय बाकी है, आने वाली गेंदबाजी बल्लेबाजी बाकी है और राजेश गावकर का साथ देने के लिए प्रीतम गायक न्यू बैटर मैदान पर। कप्तान टीम के रिद्धि वॉरियर्स काफी दूर से इस मैदान पर सफर कर चुके हैं, रिद्धि वॉरियर्स बायडी क्रिकेट टीम। और एक बात उनके बारे में उन्हीं के साथ गुमटेश्वर मरगांव की मैं बात करूंगा। कई भी जब जाते हैं, मुकाबले खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो दोस्तों ये 2 टीम ऐसे हैं सही समय पर पहुंचते हैं, बिल्कुल ये अच्छी बात है क्रिकेट के लिए। ये 2 बिल्कुल जो कि 2 खिलाड़ी पहले मैच में नहीं थे, आज समाविष्ट हो चुके हैं और इसी बीच में गेंदबाजी में परिवर्तन हो चुका है। 3 ओवर समाप्त, 4थे ओवर की शुरुआत। रन रेट बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन कहीं ना कहीं 4 विकेट खोए हैं मैदान में। ऋषिकेश गावड़े, अच्छी गेंद इस बार डीले हाथों से हल्के से खेला, मिड ऑफ पर हाना कर रहे थे, आखिरकार निकले।
सुप्रेश जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। पेडनेम प्रीमियर लीग की चर्चा होती है। बिल्कुल 9 बजे पहला मुकाबला शुरू होता है सुरेश रैना मैदान पर, और ये एक बिल्कुल यादगार टूर्नामेंट रहा है। शिवराम पारसेकर का आदरणीय सर माइकल लोबो जो पुरस्कृत करते थे, 8 बजे सुबह पहला मैच खेला जाया करता था, और इस मैदान पर भी बिल्कुल सही समय पर ये मैच। ओवर पेज गेंद, एक बेहतरीन शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर वैभव गेंद को उठाते फील्ड करते, और जब तक थ्रो पहुंचता नॉन स्ट्राइकर एंड पर, एक सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में। पानपरा क्रिकेट उसगांव का एक आयोजन होता है हमेशा, जो कि 9 बजे मैच शुरू होता है। ऐसे कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं जो सही सही समय पर होती है, और उनका पूरा क्रेडिट देना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर को और उनके साथ सभी टीमों को। राजेश गांवकर स्ट्राइक पर, और घूमकर ऑन साइड पर मारना चाहते थे, गेंद चली गई कवर पॉइंट पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते बैकअप हो रहा था शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, लेग बाइज का इशारा अंपायर का, और एक सिंगल बढ़ गया और स्कोर के खाते में। पिछले साल में 2 बड़े प्रतियोगिता रही थी अखिल, मांद्रेम सरपंच चषक और मांद्रेम चैंपियंस ट्रॉफी, 2 बड़ी प्रतियोगिता रही थी, और बहुत एक सुंदर आयोजन था। और उन्हीं में से एक का आयोजन में सर महेश जी जो हमारे मंच पर यहाँ पर मैच का आनंद लेते हुए, ओवर पे चेक लेफ्ट एक शॉट, गेंद हवा में, लेकिन मौका बिल्कुल नहीं बना। ओ बैकअप बिल्कुल नहीं था, बैकअप नहीं था, ये बैकअप होना चाहिए। प्रजोत आगे निकले, गेंद ने बिल्कुल थोड़ा सा चकमा दिया, लेकिन मेरे ख्याल से जो बैकअप कर रहे थे साथी फील्डर वो पीछे नहीं आए, और जो 1 रन था वहां पर 3 रन और जुड़ गए, और चौका मिलता हुआ स्कोर के खाते में, 4 रन मिले स्कोर के खाते में। स्कोर आगे बढ़ा 40 पर, 4 विकेट पर 40 रन। बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं दोनों टीमों, एक और से रन बन रहे हैं तो एक और से मेरे ख्याल से विकेट भी मिल रहे हैं टीम को। 40 रन 4 विकेट पर खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। ऋषिकेश अपने बॉलिंग मार्ग पर, और बढ़िया शॉट, थोड़ा सा दूर से खेला, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ वैभव आते, गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 41 रन। कल के दिन में असनोडा क्रिकेट टीम के साथ बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच का हकदार रहे थे। आज थोड़ा सा अपने लाइन पर संघर्ष कर रहे हैं, और सामने राजेश गांवकर उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया क्रिकेट, एक सूझबूझ की बल्लेबाजी, शॉट एक्स्ट्रा कवर पर, प्रजोत गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। अच्छा क्रिकेट मैदान पर दिखाई देता हुआ, क्योंकि 4 ओवर का मैच होता है अलग अंदाज होता है, 5 ओवर का मैच होता है अलग क्रिकेट, जब 8 ओवर का मैच होता है तो आपको अलग अंदाज अलग क्रिकेट के साथ खेलना पड़ता है। और वही बल्लेबाजी मैदान पर, आधे ओवर समाप्त हुए, 4 ओवर का खेल, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 42 रन 4 विकेट पर। बॉलिंग में परिवर्तन 5वें ओवर की शुरुआत, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते एक बेहतरीन आवाज के साथ आइए सर नदीम अहमद के साथ। Thank you, Ashok. Ashok Chinaik, a wonderful Hindi commentator, and the signal of power play over has been shown by the official. End of 4 overs, and the score is 42, going at the rate of almost 10.5. And into the bowling, it's Raghunath Kaskar has been brought to get started with the 5th over. Once again, let me remind Karim cricketers, Sukar Parvarim organizes this wonderful tournament, the 10th hardball tennis cricket tournament, Panchayat and Municipality. And this tournament is just getting better and bigger every year. And look at that, absolutely what a perfect setting for the game of cricket to be played. With the first semi-finals, Riddhi Warriors batting first against Mandrem Boys, won the toss and opted to field first. Score is 42 for the loss of 4 wickets.
4 overs gone, but it's all 4-4-4. 4 overs, 4 wickets. Score is 42 at the rate of 10.5. And the bowling, it's Raghunath Kaskar. And facing him is a muscular, looks like a heavyweight boxer, Rajesh. Rajesh Gaonkar, absolutely a big powerhouse, muscular. Taking his time, Raghunath Kaskar. Two officials, Shivcharan Dabulkar and Mr. Naik with the black jersey. A lovely shot. The take outside edge should be just one. And yes, comes the signal. This signal will take the score to 43. As the sweet attracts and cricket attracts cricketing lovers, we have with us Digambar Halankar. For his precious time, he's been present on the dais. Babu Kandulkar, Narayan Hiroji, Vittal Devasthan, President as well, Dinesh Naik, the proprietor of Neelam Stores, Raghunath Amre. Quick delivery, beautifully bowled, good line, good length as well. Raghunath Amre, the good cricketer from Parvarim Cricketers, and not to forget Shushant Kandulkar is also joining us with Mahesh, who is known to organize a fantastic tournament in the Extreme. North Goa, oh, full toss, juicy full toss, paid the prize. Nice and straight down the ground, up and over. That's the maximum, beautifully timed and well executed. The message is very clear from the batter, no full tosses for this wonderful batter. It's Pritham is getting the runs, and score is quickly moving up to 49 runs with the help of this huge sixer. Oh, slightly maybe from the leg, that will be a leg by. Yes, comes the signal. Leg by single will take the score to 50 up for Riddhi Warriors Bali. Rajesh Gaonkar and Pritham doing the job for the team. Riddhi Warriors, they've been asked to bat first after winning the toss by Mandrem boys. Wonderful shot once again, inside out, absolutely. That's a specialist shot from the Indian batters. Virendra Sehwag, Sachin Tendulkar, all played this kind of a shot in such a lovely timing. In the meantime, 2 runs to take their score to 52 runs on the board. Every ball is at least a minimum of single. This is a good momentum after the fall of 4 wickets. It really doesn't matter how many wickets have gone down, but what matters is the confidence, as exactly that is the confidence can be seen in these batters. Lovely shot from Rajesh. He's the powerhouse. The ball will go once again. Huge, high and handsome out of the park. Clean as a whistle. Absolutely. The timing so very perfect, and the ball coming right out from the middle of the bat. So 16 runs for this over from Raghunath Kaskar, and this 16 runs takes the score up to 58 runs. So Raghunath done his spell, and the bowling figure is 2 overs, 23 runs and 2 wickets. And now Praveen Sawant to begin the 6th over. तो छठे ओवर की शुरुआत और प्रवीण सावंत को लगा है गेंदबाजी में। तो सभी दर्शकों का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत, योकार और आप सभी का इस्तकबाल। पहला सेमीफाइनल रिद्धि वॉरियर्स बनाम मानरेम बॉयज़ के बीच घमासान। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए मानरेम प्रवीण की गेंदबाजी। छठी ओवर की शुरुआत और सुंदर गेंद के साथ पूरी तरह से चगा दिया। फिर दम थोड़ी सी मुश्किलों में नजर आते हुए गति परिवर्तन बिल्कुल शानदार और लाइन बिल्कुल सटीक प्रवीण की। रनों को सीमित करने का प्रयास यहाँ पर बिल्कुल बखूबी नजर आता हुआ गेंदबाज की ओर से, और काफ़ी ज़रूरी था गेंदबाज को इस जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को रोके, जबकि दोनों ही बल्लेबाज
पूरा दमखम का जोर लगा रहे हैं और कुछ रन बटोरते हुए, कभी चौका, कभी छक्का, कभी 2 रन के साथ बिल्कुल एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर नजर आता हुआ और एक अच्छी साझेदारी। किसी भी फॉर्मेट की अगर बात करें, टेस्ट, वनडे हो या फिर T20, T10 या फिर लिमिटेड ओवर्स, साझेदारी का होना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल स्ट्राइक पर प्रीतम, बैकफुट पर खेल दिया इस बार, गैप ढूंढने की कोशिश, मगर वहाँ पर अगर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित तौर पर कुछ अलग ही इशारा होता अंपायर का। मगर फिलहाल प्रज्योत काफ़ी तेज़, ऐसे लपके जैसे जॉन्टी रोड्स। अगर साउथ अफ्रीकन की बात करें तो निश्चित तौर पर कुछ दमखम के फील्डर्स पाए जाते हैं। हर्षल गिब्स, जॉन्टी रोड्स पूरी दुनिया में मशहूर अपनी फील्डिंग के लिए, जिन्हें कहा जाता है प्रोटियास। तो फिलहाल राजेश का ये शॉट फिर से एक बार हवाओं से बातें करता हुआ मैदान के बाहर, खत्म, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया मैदान के बाहर, 6 रन। तो बिल्कुल इसी अंदाज पे बल्लेबाजी करने के लिए माहिर, और 16 का डोला, 46 की छाती आप देख सकते हैं, पूरी ताकत झोंक देते हैं, कोई दो राय नहीं। एक दमदार बल्लेबाज और पावर हाउस जिन्हें कहा जाता है रिद्धि वॉरियर्स के। और इसी के साथ फिर से एक बार हल्के से प्रवीण के इरादे थोड़े से पस होते हैं, मगर फिलहाल देखना होगा क्या कमबैक कर पाते हैं प्रवीण। और यहाँ पर कैच का कॉल और बिल्कुल चिपकाए लो फेविकॉल से वाली कैच हो गई है कॉल्स की दिशा की ओर। गैप ढूंढने की कोशिश और राजेश ने बिल्कुल कोई गलती नहीं की। मुझे तो लगता है 5 रुपए का फेविक्विक नहीं बल्कि 10 रुपए का फेविक्विक लगाकर खड़े थे, और जैसे ही गेंद आई चिपक गई हाथों में। तो पावर हाउस फिलहाल मैदान से बाहर आते हुए, यानी कि और एक विकेट का पतन होता हुआ प्रवीण को, जो कि 6ठी ओवर में 32 रनों की साझेदारी उनकी शानदार रही। बिल्कुल कुछ दमखम के शॉट भी देखने को मिले और वही उनका कंट्रीब्यूशन ले आया स्कोर को, जो कि अब जाकर पहुंचा है। और अपने निजी 18 रन पर आउट होकर वापस प्रवीण लौटते हुए, इन जैसे बल्लेबाजों पर बिल्कुल निश्चित तौर पर एक उम्मीद होती है कि कुछ अच्छे रन बनाएंगे, और राजेश ने बिल्कुल 18 रन का योगदान दिया और एक शानदार पारी खेली जिसमें बड़े बड़े शॉट्स शामिल थे। और प्रवीण को यह मिलता हुआ 3री विकेट की सफलता। जानकारियों का समावेश हमें हमारी अखिल परब की ओर से बिल्कुल एक कंप्यूटर स्कोरर जिन्हें कहा जाता है, हर एक फील्डर पे उनकी पार की नजर निर्मा सुपर। बिना 12th मैन के भी अपने कंप्यूटर में अपने दिमाग में पूरी डेटा फिट करते हैं, तभी तो उन्हें नाम भी दिया गया है एक कंप्यूटर स्कोरर, जो एकमात्र बेहतरीन। तो फिलहाल स्कोर 65 पर 5 विकेट गिरता हुआ स्वप्नेश बल्लेबाजी के लिए। स्वप्नेश वेली पर प्रवीण की गेंदबाजी धीमी गति से, गति परिवर्तन अगर हिंदी में कहें, चेंज ऑफ पेस अंग्रेजी में कहें, गति बदल मराठी में कहें, गति बदलाव ने कन्नड़ा में कहें, गतिमान फेरफार गुजराती में कहें, वेगम योकमारपू तेलुगु में कहें, उर्दू में कहेंगे रफ्तार की तब्दीली, और मालवनी में कहेंगे रान लाइन तोपर आणि वाल लाइन वाटीभर। इस प्रकार की एक सुंदर गेंद के साथ पूरी तरह से छका दिया, सोचने पर मजबूर किया स्वप्नेश को कि किस तरह से खेले। तो फिलहाल प्रवीण की सुंदर गेंदबाजी है। संभल कर इस बार ये देखिए, लेफ्ट कटर, राइट कटर, ऑफ कटर, लेग कटर जिसे कहते हैं, बिल्कुल एक अच्छी पकड़ उनकी गेंदबाजी पर, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। तो फिलहाल एक सुंदर ओवर घटाया, तो 6 ओवरों की समाप्ति और 2 ओवरों में 13 रन दिए हैं, 3 विकेट की सफलता प्राप्त की। मगर फिर भी अपने आप से थोड़े से नाराज आकाश की ओर देखते हुए, और 6 ओवरों की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचता हुआ 67 रन, विकेट गिरी है 5। फिर से एक बार मैं आमंत्रित करूंगा अशोक जी नाइक को कॉमेडी बॉक्स में। थैंक यू नदीम। आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है। मैच का टोटल 66 रन। कमेंट्री बॉक्स में हम चर्चा कर रहे थे 90 की, शायद देखना होगा उससे पहले रोकते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। 90 का टोटल एक फाइटिंग टोटल होगा। सीमेंट विकेट है, मैदान पर अच्छी जो कि धूप निकली है, अच्छा मौसम है, अच्छा माहौल है, और इसी बीच में बॉलिंग में परिवर्तन। राजेश गावड़े आ चुके हैं उर्फ हुक्कू, वो बॉलिंग मार्ग पर, और इस बार उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑफ सी मारेका पर, गेंद चली गई डीप लॉन्ग ऑफ सी मारेका से बाहर, 6 रन के लिए।
बॉलाक मारले बाकी सगळे फुडल्या बॉल आज ज्यादा गेंदे ओवर पिच देखने को मिली मांद्रिम बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से। एक मात्र छोटी गेंद मिली, लेकिन वो बात छोड़ी तो ज्यादा ओवर पिच और इस सीमेंट विकेट पर बिल्कुल ओवर पिच गेंद आपको महंगे साबित होगी। 73 रन 5 विकेट के नुकसान पे 72 टोटल। और इस बार फिर से उड़ाया बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद वाइड लॉन्ग ऑन पर सी मारिका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। फिर से ओवर पिच गेंद और ओवर पिच गेंद पर एक जोरदार तड़ाका। 78 पर पहुंचा टोटल स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 6 पर, दूसरा 8 पर, तीसरा 32 पर, चौथा विकेट 33 पर और बाद में एक जरूर साझेदारी बनी 5वां विकेट जो 65 पर और आते आते 2 बड़े शॉट के साथ स्वप्नेश वेलिप स्ट्राइक पर। राउंड विकेट, इस बार अच्छा शॉट, फिर से एक बार फील्डर है मौजूद लॉन्ग ऑन पर, गेंद को उठाते फील्ड करते थ्रो किया स्ट्राइक एंड पर, लेकिन जब तक थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में तब तक एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर आगे बढ़ा 79, 79 रन 5 विकेट पर। एक बहुत ही अच्छा कैच इस टूर्नामेंट में स्वप्नेश वेलिप ने पकड़ा है और अनिल और सूरज वेलिप ये मिस टाइम कर बैठे। क्या मौका बनेगा? शॉट फाइन लेग पर अंबाजी गेंद के नीचे कैच छोटा, ठीक से अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाए, संतुलन नहीं कर पाए और एक मौका जरूर बना बल्लेबाज को। एक रन इसी बीच में जुड़ गया स्कोर के खाते में। एक मौका जरूर निकला था विकेट कीपर के लिए। ये कैच बिल्कुल होना चाहिए, इस तरह से कैच पकड़ने चाहिए। और जब जब ये बातें मैदान पर दिखाई देती है अखिल, तो कई विकेट कीपरों की याद बिल्कुल ताज़ा कर देती है। संजू नागवेकर हो, राम नागवेकर हो, विकास देसाई हो, बाबा मलिक हो, गोविंद बाप्पा हो। बढ़िया शॉट इस बार बैकवर्ड्स कर लेग पर और एक हवाई फायर गेंद सी मारिका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। देखो कैच छूटा और उसके बाद एक बड़ा शॉट लगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, नहीं तो बिल्कुल नए बल्लेबाज आ सकते थे मैदान पर। इसी बीच स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 86, 86 रन 5 विकेट के नुकसान पर 7वां ओवर। बिल्कुल धन्यवाद खर्रेम बॉयज, आपकी पूरी टीम को जो बॉल बॉयज का साथ दे रहे हैं, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। बहुत बड़ी मेहनत आपने किया है इस टूर्नामेंट के लिए। राउंड विकेट, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंद लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। 87 पर पहुंचा टोटल स्कोर 87। और इस बार ब्लैक स्टंप से बाहर गेंद, फिर से बाहर फैला दिया अंपायर ने, वाइड बॉल का इशारा और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। कई दर्शक जुड़ चुके हैं, AB25, भरत अर्कस, उनकी पूरी टीम, आपका भी धन्यवाद। और YouTube पर जो दर्शक इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स में से। ये नीचे रही गेंद, शायद अंबाजी थोड़ा सा बिल्कुल दबाव में दिखाई दे रहे हैं। एक रन और मिल गया, 22 का इशारा अंपायर का। खेल देखते देखते 7 ओवर का समाप्त हुआ और 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 89, 89 रन टोटल 5 विकेट पर। हम चर्चा कर रहे थे 90 के आसपास की, लेकिन यह टीम 90 से आगे निकल रही है। तो विकेट कीपर के अखिल चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल और कई नाम जरूर लेने पड़ेंगे। गोपाल भट्टा बिल्कुल जो विकेट के पीछे हमेशा चौकरने स्फूर्तिले चुस्तिले रहते। विकास देसाई उर्फ भाऊ और एक बेहतरीन जो कि विकेट कीपर है समर्थ गावस, वो हमेशा दिखाई देते हैं। नावेलिम क्रिकेट टीम की ओर से रोहन नाइक, वो भी हमेशा चौकरने। संजू नागवेकर को बिल्कुल कौन बोलेगा विकेट के पीछे। किरण खतकर, एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी। योगेश पेंडकर का नाम भी बिल्कुल लेना पड़ेगा विकेट कीपर की भूमिका में। और नितिन लिंगुड़कर एक स्फूर्तिले चुस्तले फील्डर के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं। इसी बीच में आखिरी ओवर का खेल और बॉलिंग में परिवर्तन। शांताराम महांबल आ चुके हैं बॉलिंग बार पर। ओवर पिच गेंद, पहली गेंद पर एक लेफ्ट हैंड शॉट, लॉन्ग ऑन पर गेंद सी मारिका से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। 95 पर पहुंचा टोटल स्कोर
चौथा बड़ा शॉट जो कि स्वप्नेश वेलिप के बल्ले से बहुत ही आते आते आक्रामक रवैया अपनाया। कप्तान जो कि टीम के बिल्कुल कप्तान है और बिल्कुल एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रही है। इस बार ऑन साइड पर वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर शानदार फील्डिंग, ओ गेंद हाथों से फिसली, सिक्सर। और इसी के साथ रिद्धि वॉरियर्स बाली क्रिकेट टीम के 100 रन पूरे हो गए। 101 101 5 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से उड़ाया ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। लगातार 3 छक्के बल्लेबाजी में और स्कोर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ। 107 107 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा टोटल सामने खड़ा कर रही है मांद्रिम बॉयज क्रिकेट टीम के सामने। बिल्कुल पावर प्ले का 2 ओवर का खेल काफी महत्वपूर्ण रहेगा मांद्रिम बॉयज के लिए। आपको पावर प्ले में 2 ओवर में कम से कम 35-40 रन बनाने ही पड़ेंगे इस मैच में, क्योंकि क्रिकेट है आजकल बिल्कुल भाकित करना बहुत गलत बात होती है, जो कि छोटा स्कोर कभी कभी मैच बड़ा बन जाता है और बड़े टोटल को भी चेस हुए मैदान पर कई बार देखा है। इस बार ऑन साइड पर डीप स्टर्ले बाउंड्री पर और एक बड़ा शानदार शॉट। गेंद चली गई 6 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने मैदान पर। इस मैदान पर समर्थ गावस ने एक बड़ी इनिंग खेली, मतीन खान ने एक बड़ी इनिंग खेली है, नागेश ने कल बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की। और ये खिलाड़ी बिल्कुल जो कि बिल्कुल मुड़कर नहीं देख रहा है, बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। 43 पर खुद के व्यक्तिगत नागेश की बल्लेबाजी में कल 43 रन। अब स्ट्राइक पर स्वप्नेश वेलिप 43 पर, लेकिन मौका है अभी भी हाफ सेंचुरी का, क्योंकि गेंदे अभी भी बाकी है 2। और इस बार गेंद खड़ी हो गई, यह मौका बनेगा कैच का और इसी के साथ और एक सफलता। लेकिन जोरदार तालियां होगी इस खिलाड़ी के बल्लेबाजी के लिए। क्या बल्लेबाजी की, लंबे लंबे छक्के लगाए, दर्शकों का पूरे मनोरंजन किया। 43 रन बनाए, 7 जबरदस्त छक्के लगाए, 10 गेंदों का सामना किया और 10 गेंदों में 43 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, एक पहाड़ सा टोटल, विशाल सा टोटल बना रही है रिद्धि वॉरियर्स बाली क्रिकेट टीम। और काफी खुश हो गए टीम के सर दिनेश नाइक और उन्हीं के साथ आशीष नाइक और जापरू, अपने टीम के साथ जो जुड़ चुके हैं। अपने टीम के बिल्कुल टीम मैनेजर आशीष नाइक वो भी दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी प्रतियोगिता हमेशा रहती है दिनेश सर, जिंगारो बॉयज का एक सुंदर आयोजन रहता है जिंगारो बॉयज का। छोड़ा जाने दिया, वाइड बॉल का इशारा। और इस टूर्नामेंट में 43 रन पर 3 खिलाड़ी जो आउट हो चुके हैं। तो अर्धशतक से ये चौथा बल्लेबाज जो वंचित रह गया। वाइड बॉल के साथ 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। शॉर्ट अप लेन गेंद, हल्का सा अपील, विकेट कीपर का रन आउट का मौका बनेगा। जी बिल्कुल आउट। तो और एक सफलता, 7वां विकेट। और इसी के साथ टोटल मात्र रुका हुआ स्कोर बोर्ड पर 114 रन 7 विकेट पर और टारगेट है 115 रनों का मैच को जीतने के लिए। एक बड़ा टोटल निश्चित है। पावर प्ले का खेल काफी निर्णायक रहेगा। पावर प्ले में अगर 35-40 रन बने मांद्रिम बॉयज की बल्लेबाजी में तो मजा आ जाएगा इस मैदान पर इस मैच को देखने के लिए। बहुत ही शानदार आयोजन, सुंदर आयोजन खर्रेम क्रिकेटर्स का 10वां पर्व रैनी क्रिकेट का टीम। लेकिन नदीम सर बिल्कुल बारिश नहीं हुई है पिछले 2 दिन से। रैनी क्रिकेट का टूर्नामेंट है लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं है। हम जिस तरह से विकेट कीपर की चर्चा कर रहे थे, नदीम बिल्कुल कमेंटेटर की भी चर्चा करेंगे। गोवा की सरजमीन पर बिल्कुल एक से बढ़कर एक दिग्गज अंग्रेजी के कमेंटेटर है सर हरीश काकोडकर, बिल्कुल गुजरात का सफर कर चुके हैं। नदीम आप भी बिल्कुल काठमांडू नेपाल वो आपका भी सफर रहा है। तुषार नाइक है, संदीप पागी है, अक्षय महाले है, नीलेश पारसेकर है, एक से बढ़कर एक सागर गोसावी और एक मैं जरूर नाम लूंगा जो एक से बढ़कर एक अंग्रेजी की बहुत ही शानदार कमेंट्री करते हैं। बहुत मजा आता है इन सभी दोस्तों के साथ कमेंट्री करने में। और उन्हीं के साथ
कई अंपायरों को भी बिल्कुल जो कि नाम लेना पड़ेगा, बहुत ही शानदार अंपायरिंग रहते हैं सर यशवंत बर्डे, उन्हीं उन्हीं के साथ आईपीएल में सैयद खलीफ सर, वो भी आईपीएल में। ये दो नाम बिल्कुल जो कि आदर से सम्मान के साथ लिया जाता है। लेकिन उन्हीं के साथ सर सुजीत राणे हो, सर वामन मयेकर, अभिजीत, उन्हीं के साथ सुशांत साळगावकर, ये कई नाम है बिल्कुल जो कि अंपायरिंग के साथ जरूर लिया जाता है। उन्हीं में से सदगिरी नाईक, शिवचरण उर्फ बाबू दाभोलकर, अभिजीत तळेकर, संतोष गोवेकर सर, प्रशांत गड़ेकर, ये बिल्कुल जो कि एक से बढ़कर एक बड़े बड़े नाम है अंपायरों की जिम्मेदारी के साथ, और बहुत ही अच्छी अंपायरिंग इनका भी हमेशा देखने को मिलता है। एक सुंदर आयोजन, बड़ा इनाम है 70,000 रुपए का इस टूर्नामेंट के साथ। थोड़ा सा वक्त हम डीजे को भी जरूर देंगे। बहुत ही सुंदर आयोजन है, लाइव है एबी 25 का। सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, वो होगा मदिहा 11 मापसा और सर्वेश 11 नावेलिम। दोनों टीम रिपोर्ट करें, कमेंट्री बॉक्स के साथ संपर्क करें दोनों टीम। नदीम सर एक बार फिर से जुड़ जाएंगे कमेंट्री बॉक्स में। एक से बढ़कर एक इस साल में बड़ी बड़ी प्रतियोगिता रही, पागी क्रिकेट लीग कानकोण में रही, मोली चषक जो और एक बड़ी प्रतियोगिता रही, एसके जॉगिंग का एक सुंदर आयोजन डे नाइट का रहा, पानपराग उसगांव, उन्हीं के साथ ध्रुव ट्रॉफी आने वाले समय में इस साल में पेंडिंग प्रीमियर लीग, और मरगांव में खास करके जो कि साउथ गोवा प्रीमियर लीग वो भी एक बड़ी प्रतियोगिता रही, और उन्हीं के साथ वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि जिस मैदान पर वो भी एक बड़ी प्रतियोगिता रही। जिंगारो बॉयज का एक बहुत ही अच्छा आयोजन रहता है। जिंगारो बॉयज का वो भी हमेशा एक सुंदर आयोजन रहता है। एक से बढ़कर कई कई जो कि रेनी क्रिकेट भी बहुत, फ्रेंड सर्कल होंडा का एक बड़ा आयोजन रहा। फिर शिरोडा में जो कि बोरी शिरोडा में, एक कामाक्षी शिरोडा, एक से बढ़कर एक कई टूर्नामेंट जो कि इस साल में ओएसएम बॉयज का क्रिकेट का टूर्नामेंट। फिर सर एक बार फिर से जब बीच बीच में वक्त मिलेगा तो जरूर आप सभी के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैच मैदान पर शुरू होता हुआ 115 का टारगेट और कमेंट्री बॉक्स में शुरू होती है एक बार फिर से आवाज आप ही के साथ नदीम अहमद की। Thank you, Ashok. 115 to achieve and win in 8 overs, it means almost 14 runs. And the requirement is 14.37. The fielding is set. Kapil Velip on the bowling mark. On the striking position is Bhau on the Nasa's end. Ambaji, the captain, leads from the front. Here comes the very first delivery. Oh, lovely shot, beautiful, picked up and put it away. There's a fielder, will he cut it off? He does well. Swapnesh, wonderful fielding after that, a brilliant batting performance. Absolutely, he's a live wire on the ground. Always good to see. He's a consistent performer, Swapnesh.
And for this tournament, he's got one of the loveliest catches, one of the best catches of Vittal Gauss that has been taken by Swapnesh. Oh, lovely shot. He has dismissed that out of his sight. Absolutely one boundary to begin with his batting performance. Rajesh Gaude along with the captain Ambaji Kanodkar. Ambaji Konadkar, the captain, leads from the front and leaves by example. Lot depends on him, his ability to stay there and play a long, insensible inning. And Rajesh fires a big one. Good start here. Lovely shot, sit down the ground too long of this. The field will get it up. He does well. The fielding is just outstanding of the Warriors. Whatever comes their way, just pick it up. Absolutely wonderful, as we saw a good example of Swapnesh. And now Pritham, the captain, Pritham Gayak, the captain of the Warriors. The team owner is Dinesh Naik and the manager is Ashish, who's known as Jafru with love in entire Goa. Not a single ball that he has set down and relaxed, just allowing the ball to go past. That should be a big wide, and yes, it is. Not playing and not going for that. This is a good thinking from the captain. He's got a best head on his shoulders. He's got a long way, 115 to achieve to win. A lovely shot, a bit of a fumble there in the square leg region. Could be a couple of runs, but there is Swapnesh very quick. In the meantime, they have to hurry up. Oh, wonderful running from the captain. Not happy. Look at that Kapil William. That has to be stopped. At these standards, this kind of fielding has to be stopped. And what could have been a no run turned out to be 2 runs in the form of fumble in the fielding. He realizes that his mistake. Because Chukila Maafi nahi, as they say it in Marathi. They have to be really spot on. They have to stop whatever comes their way, and that is exactly what is the fielding, what we see on the ground of the Warriors, defending their huge target, as rightly said by Pritham Gayak. Anything beyond 100 will be a good score, so 115 to defend for them. It's a mighty score. And look at that. One player is tying the lace of the captain. That is called the true spirit of cricket, and cricket is gentleman's game. There is no ego. Now in today's atmosphere, if you ask a brother to tie my laws, he will say, get lost. But look at here. It's a good example. Kapil William round the wicket. In the meantime, good looking drive, but straight to the captain. Captain to captain. That will be a single to take the score up to 10 runs on the board. On the right path is Mandre boys with the team owner Mahesh Konadkar, who's known to organize such a big, messy tournaments. Oh, thick outside edge, nicely taken by the wicket keeper. That's the first wicket down of team. Mandre boys loses Rajesh Gaude. And Kapil strikes back. The very first over and a wicket here. 10 for 1, chasing 115. A long way to go for them, and the journey will be full of troubles. But how they deal with it, we'll have to wait and watch. Once again, a quick reminder for all the spectators, current cricketers, Sukur Purvarim organizes 10th Hardball Panchayat Municipality Tennis Cricket Tournament 2023. And they have been so very consistent since last almost a decade now, 10 years. And look at this beautiful ground. We'll be getting a facelift soon, as what I've been heard. And it has to be, because it looks like if once the renovation is done, it will look like a Dharmashala ground of Goa for sure. And Goa got some beautiful grounds. And Goa state is as at all known for its beauty. It's a tourist destination. But in the meantime, the man who walks in at number 3, Prajot Sawant joins in at number 3, 10 for 1, and the captain gains the striker. Rupesh Veli into the bowling mark. Nicely done across the bat. And the ball has gone for just a single run. And we score with the help of this single, has gone up to the mini Nelson. That is 11 runs. A lot of special guest dignitaries and the big names on the dice. A warm welcome to all of them, and also
for the spectators joining us live. The first semi-final between Riddhi Warriors and Mandarin Boys. Mandarin Boys winning the toss and bowling first. Batting first, Riddhi Warriors scored 115 to win for Mandarin Boys. It's a run chase. Full toss! Didn't quite time the ball. Will get a couple of runs. Swapnesh is behind it. 3 fielders in pursuit of the ball as the ball wins the race. That's a cracking beauty. Beautifully picked up and played right in the gap above the head. And making the good use of the power play overs. And that is exactly what the batters need to do. Make their chances fancy. And that is exactly what Prajot has done. Beautifully picked up. Nicely connected and unable to reach in spite of running behind the ball. 3 fielders. Even the fielder of who's got the quickest legs on the ground is Swapnesh. Could not stop the ball. But let me tell you, he's got one of the most outstanding, breathtaking catch of the tournament of Vittal. Madiha 11 and Sarvesh 11 will be the second semi-finals to be played after this match. All the best for those teams as well. What a tournament this has been. The team which is working behind the tournament has been tirelessly working to make this tournament a great grand success, and well done. And big thank you for Sanjit sir to giving me an opportunity along with Ashok Jinaik, such a wonderful commentator who's been loved in Goa, as he rightly said. सभी ओर से केवल प्यार ही मिलता है अशोक जी नाइक को. एक काफ़ी बेहतरीन कमेंटेटर हिंदी के, और कभी कभार मराठी भी बोल लेते हैं. Muscle pull looks like on the ground for Swapnesh. He's not shy. He's showing his sexy thighs. मगर अशोक जी इस मैदान पर फील्डिंग करना काफ़ी आसान नहीं. आप देख सकते हैं कुछ पत्थर भी नज़र आते हैं काले, जो कि अगर आप गिर पड़ो तो वह बिल्कुल एक गहरा जख्म बन सकता है. मगर उसके बावजूद देखिए जीतने की जो जुनून है वो बेमिसाल, बिल्कुल लाजवाब. और ख़ास तौर पर अगर बाली की बात करें तो निश्चित तौर पर एक टीम जो मेरी भी काफ़ी फेवरेट रही है, काउबॉयज़, तो फिलहाल रिद्धि वॉरियर्स के नाम से खेलती हुई अपने क्रिकेट टैलेंट का डंका पूरे गोवा के सरजमीन पर मचता हुआ. तो फिलहाल ये गेंद हल्का सा बल्ले का मिलाव हुआ, केवल 1 रन मिल सकता है. 1 रन के साथ स्कोर अब धीरे से पहुंचता हुआ जब पहुंचा है 16 रनों पर. आप देख सकते हैं आसमान पर सफ़ेद बादल छितराए हुए, बारिश का कोई नामो निशान नहीं. तो पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी कड़क धूप, ऐसे लग रहा है कि मई के महीने में हम क्रिकेट के मैदान पर मौजूद हैं. अशोक जी, तो फिलहाल अक्टूबर से फिर से एक बार कई सारे टूर्नामेंट्स की शुरुआत होने जा रही है. तो फिलहाल दूसरी ओवर जारी. राउंड विकेट बिल्कुल पैरों में गेंद डाली गई थी. अक्सर कमेंटेटर कहते हैं कि गेंद जड़ में डाली गई थी. मैं तो कहूँगा पैरों में, क्योंकि बल्लेबाज इंसान होता है, कोई पेड़ नहीं कि उसकी जड़ में गेंद को डाली जाए. तो खोद निकाला है और कप्तान बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए फिलहाल मिड विकेट की ओर गेंद को दिशा दी. 1 रन के लिए, 1 रन के साथ बिल्कुल एक फिराक में जैसे ही गेंद आएगी, हाफ वॉली, शॉट ऑफ लेंथ या फिर फुल टॉस, पूरी ताकत झोंक देंगे उस शॉट के पीछे. तो फिलहाल मौके की तलाश में, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, क्रिकेट इज अ वेटिंग गेम, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द बैटर्स आर ट्राइंग टू डू हियर. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू सो फायर सम बिग शॉट्स. Prajot on strike. Oh, once again a swing of the bat, but didn't quite timed it. This is beautiful bowling from Rupesh Velip in the second over. And just 8 runs conceded. End of 2 overs. 18 for the loss of 1. Change in the commentary. थैंक यू, धन्यवाद नदीम. दोनों टीमों की अगर बात की जाए बल्लेबाजी की, आखिरी 2 ओवर में 48 रन बनाए थे रिद्धि वॉरियर्स बाड़ी क्रिकेट टीम ने. और पावर प्ले की अगर बात करेंगे, जो एक 25-30 का जो कि स्कोर होना चाहिए था, वहीं पर रोक लगा दी है. 17 रन 1 विकेट की, 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. थोड़ा सा सफर जरूर लंबा है मैच का, दूर का है, लेकिन सीमेंट विकेट है तो मुकाबला बन सकता है. आइए टॉस के लिए दोनों टीम कैप्टन, इस मैच के बाद जो कि पिच पर ही टॉस किया जाएगा. बिल्कुल, थैंक यू सर.
तो दूसरे सेमीफाइनल का जो टॉस होगा वो पिच पर होगा। सभी मान्यवर वो भी उसी के साथ जरूर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दोनों टीम कैप्टन बिल्कुल रेडी हो जाइए अगले मैच के साथ। सर्विस 11 नाविलिम और मदिहा 11 मापसा। इसी बीच तीसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर बॉलिंग में परिवर्तन। और पेश गेंद इस बार एक लेफ्ट शॉट, गेंद हवा में मिड विकेट पर फील्डर, और इसी के साथ नवदीप गावकर गेंद के नीचे आते हुए और एक सफलता मिलती हुई दूसरा विकेट खोती हुई मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम। बड़े शॉट, टारगेट बड़ा है तो बड़े शॉट खेलने ही पड़ेंगे। पिछले 2 दिन में नदीम बिल्कुल अच्छा साथ अंपायरों का दिया था, वो था लक्षदीप हरमलकर और पलक्षा। उन्हीं के साथ जुड़ चुके थे सर संजीत कांदोलकर, वो भी जुड़ चुके थे अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। और कमेंट्री बॉक्स में भी हम हमारे साथ कल अशरफ और विकी वो भी बिल्कुल उनका भी साथ मिला था। 2 विकेट बहुत जल्द खोती हुई तीसरा ओवर जारी है। 8 ओवर का मुकाबला है। एक ओवर अगर 20, 22, 25 का मिल जाए तो मैच बिल्कुल मुकाबला बन सकता है। मैदान पर एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा, लेकिन देखना होगा वो ओवर कौन सा होगा, या उससे पहले बाल्डी क्रिकेट टीम जो इस मैच को और पकड़ मजबूत कर देगी। इसी बीच में नए बल्लेबाज मैदान पर रोहित मांद्रेकर, ये खिलाड़ी बिल्कुल बड़े शॉट के लिए जाना जाता है। उनका रुकना टिकना बहुत जरूरी होगा मैच के साथ, लेकिन देखना होगा किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर अंपायर से गार्ड लेकर सामना करेंगे। उनके लिए राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर गोविंद अगली गेंद लेकर। दूर दूर जमाएगी फील्ड, कवर पॉइंट, शॉर्ट कवर, मिड ऑफ ऑफ साइड पर एक लॉन्ग ऑफ, और गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, हवा में निकली थी गेंद स्लिप पर, लेकिन मौका नहीं मिला विकेट कीपर राजेश गावकर को। गेंद निकली थर्ड मैन पर डिक्लेयर एरिया में और एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। अच्छी गेंद थी, स्लो ओवर 1 थी, बल्लेबाज को लगभग चकमा दिया था, फंसा दिया था, बाल बाल बचे वहां पर, बिल्कुल करीबी मामला था विकेट कीपर के लिए, और एक सिंगल के साथ स्कोर 20। 2 विकेट पर 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट पर निकले, कट किया इस बार, थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, फिर से सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। उपस्थित सभी मान्यवर, सभी दर्शक, इस मैदान पर आप सभी का स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से, और जो यूट्यूब पर दर्शक जुड़ चुके AB25 भरत अर्कस, और यूट्यूब पर जो दर्शक जुड़ चुके हैं आप सभी का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में। खर्रेम क्रिकेटर्स का 10वां आयोजन, एक बहुत ही सुंदर आयोजन। एक गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेग कटर थोड़ा सा लाइन पर भटके, वाइड बॉल का इशारा। ज्यादा गति नहीं दे रहे हैं गेंदबाजी में, शायद अपने लाइन पर बिल्कुल, जो कि थोड़ा सा स्लोअर 1 गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में, शॉट मिड विकेट पर, फील्डर, ओ 2 फील्डर शायद बाल बाल बचे वहां पर, शायद एक दूसरे के साथ थोड़ी सी भिड़ंत हो सकती थी, और इसीलिए अक्सर हम कहते हैं कमेंट्री बॉक्स में कि मैदान पर आपको 3 बातें करनी पड़ती है, एस, नो और वेट। वो बातें नहीं हुई तो शायद ये हाल होगा मैदान पर, लेकिन अच्छी किस्मत, भिड़ंत नहीं हुई जो कि दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और इसी बीच में स्कोर आगे बढ़ा 2 रन के साथ से। और बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, फिर से विकेट कीपर के हाथों से गेंद दूर निकली, सिंगल डिक्लेयर एरिया में, और 1 रन और जुड़ गया। लेकिन ये मैच अगर बनाना है, मेरे ख्याल से 115 का टोटल आपको चेस करना है, तो सिंगल डबल का मामला नहीं रहेगा। आपको हर ओवर में 2-3 बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे, मैच आगे बढ़ेगा, सामने वाले टीम पर भी दबाव बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल वो गेंदों को चुनना होगा, ओवर पिच गेंदों को, छोटी गेंदों को, जिस पर आपको तगड़ा शॉट खेलना पड़ेगा।
अल्टी पल्टी इस बार, लेकिन गैप में खेलने में असफल रहे। एक अच्छा टाइमिंग था स्विच हिट का, लेकिन सिर्फ सिंगल ही बन गया स्कोर के खाते में। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 25, लॉस ऑफ 2 विकेट, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नदीम, बिल्कुल इस साल में भी आने वाले समय में अक्टूबर से बहुत एक से बढ़कर एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है। इस साल में भी एक सुंदर आयोजन रहता है जिस तरह से बिल्कुल। और हमारे नदीम वो भी जोधपुर में राजस्थान में जा रहे हैं। बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। हरीश काकोडकर सर वो भी गुजरात का सफर कर चुके हैं, उनके लिए भी हम बिल्कुल दुआ मांगेंगे कि उनके और तरक्की हो, आप दोनों की, और दूर दूर बिल्कुल निकले और कभी कभी हमें भी याद करने वाला दोस्त। बॉलिंग में परिवर्तन, चौथे ओवर की शुरुआत। बैकफुट पर निकले, कट किया शॉट, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, लेकिन हल्का सा अपील अपने क्रीज में, पॉपिंग क्रीज में एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में। 1 रन मांद्रेम बॉयज, 1 रन अंबाजी के स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा 26 पर 2 विकेट के नुकसान पर। रोहित मांद्रेकर, अंबाजी, यह अनुभवी जोड़ी मैदान पर। ओ इस बार उड़ाया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक शानदार शॉट, गेंद सीमा रेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। रोहित मांद्रेकर एक बहुत ही आक्रामक जो कि बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, छक्का लगा बल्लेबाजी में और स्कोर तेजी के साथ आगे निकला 32 पर 2 विकेट पर 32 रन। राउंड विकेट कपिल वेलिप। छोटे गेंद हुक किया, इस बार बैक पर स्क्वायर लेग पर, लेकिन गेंद एक बड़ा शॉट, लेकिन डिक्लेयर जोन में, और 1 ही रन मिल गया स्कोर के खाते में। 33 पर पहुंचा टोटल 2 विकेट के नुकसान पर। सीमेंट का विकेट है। सीमेंट का विकेट है, अच्छा विकेट है, और इस विकेट पर बहुत ही बड़ा बड़ा टोटल देखने को मिला है पिछले 2 दिन से। और बढ़िया शॉट, आओ सवा सीधा हवा में, मिड ऑफ पर गोविंद सातर्डेकर, और इसी के साथ अंबाजी वापस। टीम को लगा, मांद्रेम बॉयज क्रिकेट टीम को तीसरा धक्का। कई दर्शक यूट्यूब पर जुड़ चुके हैं नदीम, उनमें से बिल्कुल हमारे और एक दोस्त जो सावरडे से असलम, वो भी मैच का मजा ले रहे हैं, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं। शानदार ट्रॉफी रखी है इस टूर्नामेंट के साथ। आज कई एक से बढ़कर एक ट्रॉफीज भी देखने को मिलती है। मुख्तार भाई कादरी का एक बहुत ही बड़ा स्पोर्ट्स का दुकान है, स्पोर्ट्स सेंटर, उन्हीं के साथ अभी स्पोर्ट, जो अभिजीत तड़ेकर एक अच्छे अंपायर है, हाल ही में वो दिल्ली में भी खेल कर आए हैं, और अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ सांगेम प्रीमियर लीग में जो बड़ी प्रतियोगिता रहते हैं, ऑल गोवा एक शानदार आयोजन रहता है सनशाइन क्रिकेटर्स का। बिल्कुल साउथ गोवा प्रीमियर लीग में भी अंपायरिंग कर चुके, बिल्कुल यादगार रहा सफर वो, तो वो भी एक बड़ा नाम है। और उन्हीं के साथ सदा धुरी, सदा स्पोर्ट के ट्रॉफीज वो भी, और अखिल परब को जो पहला जो कि मरगांव में मौका मिला था, बिल्कुल विराट तेंदुलकर के साथ, और एक बड़े जो कि अच्छे बेहतरीन स्कोरर है। तो इसी बीच में नए बल्लेबाज मैदान पर, और अगली गेंद कपिल वेलिप की, और फुलर लेन की गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ स्टंप को छोड़कर विकेट कीपर के हाथों में। अब तक अगर गेंदबाजी की बात की जाए, बाड़ी क्रिकेट टीम बिल्कुल अनुशासित गेंदबाजी, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी कर रहे, ज्यादा रूम नहीं दे रहे, ज्यादा मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। और एक बिंदी गेंद के साथ खेल आधे ओवर का समाप्त हुआ। 4 ओवर, और 4 ओवर के बाद टोटल स्कोर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हम अभी नाम बिल्कुल जिक्र कर रहे थे विराट तेंदुलकर, वो भी मैच का आनंद ले रहे हैं, जो कि तो एक बहुत ही बेहतरीन स्पेल। कपिल वेलिप 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 18 रन
और 2 विकेट। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण। स्कोर हो चुका है 33 रन। अभी भी बिल्कुल बड़ा टोटल बनाना पड़ेगा मैच में जीतने के लिए। और इस बीच में 5वें ओवर की शुरुआत, छोटा सा ब्रेक मैदान पर हो चुका है, जो कि ड्रिंक्स ब्रेक का। और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते आइए नदीम अहमद के साथ। धन्यवाद अशोक। Test. When the requirement was 14.37, now the requirement is 20 runs per over. So signal of the batting power play has been taken now in the 5th over after the completion of 4 overs score is 33. 82 more runs required now in the remaining 4 overs, that is 24 deliveries. Do or die situation here for Mandarin boys. Now the pressure is mounting up for them, and how they deal with the pressure. All right, on the left foot, there will be no run. Look at the bowling attack now of Ridhiwar is absolutely bang right on the target, in spite of the judge Josie full toss towards the leg side. But the velocity, the pace was such that it was unable for the batters to make the good use of that. That ball to begin with the 5th over. Oh, lovely shot, picked it up beautifully. The helicopter swung big and the ball has gone out of the park. Wonderful striking. Look at that, the calmness, the concentration. Rohit Mandrake is definitely batting like Rohit Sharma for the moment. But yesterday, of course, Rohit Sharma could not score much against Pakistan. But this Rohit is definitely making an impact in the very first semi-final. Secretary Satish Gawas requested to please come up on the dais and please be seated. Special guests are arriving here for this wonderful semi-finals and finals. In the meantime, now full toss. Once again, put it beautifully in the deep extra cover region. That will go racing away. Back to back, some big shots from Rohit Mandrekar. Wonderful timing, and he's cutting low at the right time, which is very important in the game of cricket. He's firing at the right time for the game. Someone is required to fire some big shot, and he's doing the job. Rohit is his name. Satish Gawas, Secretary, Village Panchayat, Sukhor. Warm welcome to him. In the meantime, the ball is up. It's huge. But there is now deep down the ball, and he takes the ball easily as it looks. The safest pair of hands, Swapnesh and Navdeep's got. And Rohit was absolutely looking very dangerous. But in the meantime, what a sign of relief here for the bowler. Sandesh Pandey sir and Rajesh Faldesai sir to please, Ferrari to please come up on the dais and be seated. Requesting these gentlemen to please come up on the dais. Rajesh Falari and Siddesh Pandey sir. Sandesh Pandey sir. What a turnaround here, absolutely. Ups and downs in the game of cricket, and this is the beauty of the game of cricket. Which team is under pressure in the meantime? The ball has got the gap, but finds the fielder. Oh, 100 pick up and stop the ball. In the meantime, they will go for 2 runs. Beautiful 2 runs picked up in the score. With the help of these 2, will go up to 45 runs on the board. Chasing 115, still a long journey. Ashokji, not easy for Mandarin team to get to the target. They have to look and deal in boundaries and sixes for the moment. Nicely hit. And this time what they will get is just 1 run. So they're taking their time. Just 1. Now Riddhi Warriors got definitely an edge on this match. Slowly but surely they are just cornering up, tightening their screws and pushing the team Mandre boys into the corners. But Mandre boys, as we know,
is a team which can surprise any best team of Goa because they've got that ability to fire back, come back flying colors. And this is exactly what I was talking about. Look at that timing. Absolutely so pure. And the ball has gone sailing out of the park in the deep mid-wicket region. Effortless sixer. Absolutely wonderful timer. Vaibhav Satoskar. One better than the other. The batters of Mountain Boys not giving up. Absolutely not giving up the chase. In the meantime, could be a catch straight down the ground to long off and been taken by Rupesh Velip. One among the Velips picked up. There is Swapnesh Velip, there is Kapil Velip, there is Rupesh Velip. And Rupesh Velip picks up this time when Swapnesh Velip is considered to be one of the best fielders of this tournament. It's got that one fine catch, that is the breathtaking catch. And if there is a prize for the best catch, it has to undoubtedly go to Swapnesh Velip, no doubt. In spite of, you can see the rocky outfield, but he's got that ability to dive and grab the opportunity. The fielding is definitely the strength of the Warriors, and the team manager Ashish is doing a wonderful job. Every ball is trying to boost the morale of the fielders, which position to deploy and how to bowl and get those dot balls. Is the signal coming out from the dugouts. In the meantime, nicely done, just finding the gap. The ball is racing away straight to Rajesh, the powerhouse of the Warriors in the gully region. In the meantime, this single will take the score up to 53. A warm welcome to Viraj Tendulkar and of course Sahil Parab, Akhil Parab. One among the best the scorers that we have on the Goan soil. One is computer scorer, that is Akhil Parab. Another one has got a very lovely handwriting, Viraj Tendulkar. In the meantime, low off full toss, but straight to Kapil. Good stop, good strong hand to the ball and allowing another single here for the batters. These singles will not serve the purpose. What they have to look for is big shots, biggies and boundaries. But in the meantime, look at the body language, full of confidence of the Warriors. Every ball there is a change of the fielding. The coming down the track, and this time catches is a call, and the bowler says it's mine, and he takes it. The 7th wicket goes down. 6th wicket goes down, and the 7th wicket for Govind in the tournament. We'll have to see who gets the best bowlers award, as there is a lot of prizes to be given during the post-match presentation of the finals. Best batter, man of the series, best bowler, best fielder. And for the best batter, there's a bat. And look at the lovely trophies. Absolutely looks like the stage has been decorated by the gold ornaments. And full of gold plated, looks like the trophies. One is big for the winners, and with the cash prize of rupees 70,000 and 35,000 for the runners-up. And look at the runners-up trophy. Sanjit Kandalkar is the name behind this tournament. In the meantime, not bowing down to the pressure is the team's spirit. Mandram was in the meantime just a single. End of 6 overs. 55 for the loss of 5 wickets. Once again, over to Ashokji Naik for the Hindi updates. The remaining 2 overs. धन्यवाद नदीम। 2 ओवर का खेल आखिरी बाकी। 2 ओवर में सामने 48 रन बनाए थे बाड़ी क्रिकेट टीम ने, और अब मात्र 2 ओवर में चाहिए 59 रन। बॉलिंग में परिवर्तन, राजेश गावकर आ चुके गेंदबाजी पर। नवदीप गावकर और छोटी गेंद हुक करना चाहते थे, गेंद थोड़े से विकेट के पर परेशान दिखाई देते हुए फाइन लेग पर डिक्लेयर जोन में गेंद निकली और सिंगल के साथ बिल्कुल थोड़ा सा क्रिकेट के मैदान पर लंगड़ी का खेल वो भी देखने को मिला। एक सिंगल बन गया स्कोर के खाते में और एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 56 पर। 56 लॉस ऑफ 6 विकेट, 56 रन 6 विकेट के नुकसान पर। नवदीप गावकर अपने बॉलिंग मार्ग पर आइटम ओवर द विकेट। और बड़ा शॉट खेलना चाहते लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ।
10 गेंदों का सिर्फ खेल बाकी अब मैच का, और 10 गेंदों में चाहिए 58 रन। यहां से लेकर हर गेंद पर आपको छक्का लगाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले 2-3 गेंदों के बाद लगभग ये निकाल सामना, जो कि मैच कौन जीतेगा ये बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट होगा। वाइड बॉल का इशारा और 1 रन बढ़ गया, एक गेंद भी बढ़ गई स्कोर के खाते में। शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर और उन्हीं के साथ सदगिरी नाइक, बिल्कुल काफी ढेर सारा अनुभव दोनों के साथ। और टॉप एज इस बार फाइन लेग पर, डीप फाइन लेग पर फिर से डिक्लेयर एरिया में गेंद, और 1 रन और मिला स्कोर में। स्कोर आगे बढ़ा 58। 6 विकेट के नुकसान पर 58 रन। सत्तावन रन अभी भी मुकाबले से दूर। शानदार बल्लेबाजी रही और बढ़िया शॉट इस बार मिड विकेट और स्कर्ले के बीच में से गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बल्लेबाजी में बहुत ही शानदार योगदान दिया, खास करके 7 छक्के लगाए स्वप्न श्वेलिप ने, 43 रन बनाए। रूपेश श्वेलिप उन्हें का बहुत ही अच्छा जो कि शुरू में साथ दिया। राजेश गावकर ने एक धुआंधार इनिंग खेली, और गेंदबाजी वो नहीं हुई मांद्रे बॉयज, जो गेंदबाजी उनकी ताकत है वो आज नहीं हुई गेंदबाजी। ओवरपिच गेंदें ज्यादा हुई, और उन ओवरपिच गेंदों पर इस सीमेंट विकेट पर बहुत ही जो कि गेंदबाजी महंगी साबित हुई। एक बड़ा टोटल इस मैच में खड़ा कर दिया। टोटल 11 छक्के लगाए बायडी क्रिकेट टीम ने। स्लोवर 1 हल्के से खेला, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर एक सिंगल जरूर मिलेगा स्कोर के खाते में, लेकिन इस सिंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैच में। 7 ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 7 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 63 रन, 63, लॉस ऑफ 6 विकेट। आखिरी ओवर का खेल बाकी। इस मैच के बाद दूसरा सेमीफाइनल, दोनों टीम कैप्टन, पिच पर टॉस किया जाएगा, आपके लिए जानकारी। और बस टॉस के लिए दोनों कैप्टन बिल्कुल रेडी हो जाइए। सर्वेश 11 नाविलिम और मदिया 11 मापसा, इन 2 टीमों के बीच में सेमीफाइनल का मैच होगा, और दोनों टीम इस मैच समाप्त होने के बाद पिच पर विकेट पर टॉस किया जाएगा, आप दोनों के लिए जानकारी। इसी बीच आखिरी ओवर, फुलर लेन की गेंद इस बार पैरों पे टकराई, एक जोरदार बल्ला जरूर घुमाया था, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। कवर पॉइंट से राजेश गावकर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते, और धीरे धीरे प्रीतम अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट अगली गेंद लेकर। थोड़ा सा एकतरफी मुकाबला जरूर रहा इस मैदान पर। एक उम्मीद थी जरूर कि मांद्रे बॉयज की बल्लेबाजी कोशिश जरूर करेगी, प्रतिकार करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा जो मैच में फर्क रहा वो बड़े शॉटों का रहा, और खास करके आखिरी 2 ओवर में जो 48 रन बने वो टोटल बना, जो कि बड़ा कर गई। अगर 90-95 का टारगेट होता तो एक मुकाबला कर सकती थी, मुकाबला बन भी सकता था, लेकिन जब 100 से आगे निकले तो एक अपने आप को टीम ने मजबूत कर दिया। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। ओवरपिच गेंद, मिस टाइम शॉट, और मिडान पर 2 फील्डर अगल बगल में, और रूपेश विलिप गेंद के नीचे आते, और एक कामयाबी। 7वां विकेट। मैच में सिर्फ औपचारिकता बाकी। गेंदबाजी की चर्चा कर रहे थे, मांद्रे बॉयज की ताकत थी गेंदबाजी, लेकिन आज वो गेंदबाजी नहीं हुई, और सामने से दाद देनी पड़ेगी बल्लेबाजी को। बायडी क्रिकेट टीम को बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, और खास करके जो आखिरी पावर जो कि स्लॉग ओवर में 2 ओवर में 48 रन बनाए, वो कहीं ना कहीं 2 ओवर महंगे साबित हुए। इसी बीच में और एक नए बल्लेबाज मैदान पर मांद्रे बॉयज क्रिकेट टीम की ओर से शांताराम मांबल, वो मैदान पर। अंतिम ओवर प्रीतम बॉलिंग मार्ग पर, लगभग मैच समाप्ति की ओर। इस बार फिर से हवा में पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर एक आसान सा मौका, और एक विकेट चला गया। 8वां विकेट वापस निकलता हुआ मांद्रे बॉयज क्रिकेट टीम का। टीम के मैनेजर आशीष नाइक उर्फ जाफरू, दिनेश सर बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा आयोजन रहता है जिंगारो बॉयज का हर साल,
और उस आयोजन में आशीष नाइक का बिल्कुल और उनके पूरी टीम का बहुत मेहनत भारी योगदान रहता है। नए बल्लेबाज और एक मैदान पर और खरेम बॉयज क्रिकेट टीम ने पूरी टीम का भी धन्यवाद देना पड़ेगा। जो बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर बहुत बार निकले वो तुरंत उन्होंने मैदान पर फेंकी है, तो पूरी टीम वर्क वो भी उनका देखने को मिला खरेम बॉयज का, और उनके लिए आप सभी का धन्यवाद। छोटी गेंद फिर से हवा में, लेकिन लगभग नो मैच लैंड में गेंद गिरती हुई। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, तो और एक रन मिला स्कोर में। 8वां ओवर, आखिरी ओवर, 8 विकेट गिर चुके और मैच बिल्कुल समाप्ति की और राउंड विकेट छोड़ा जाने दिया। गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। डिक्लेयर एरिया में वाइड बॉल के साथ 1+1 और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 2 रन मिले स्कोर के खाते में। बैकफुट पर निकले, ड्राइव किया। हम यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आइए सर किशोर कुडनेकर सर, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में से। आइए सर मंच पर तशरीफ रखिए। खर्रेम क्रिकेटर्स के पूरे ऑर्गेनाइजर टीम की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आइए सर किशोर कुडनेकर, और सर आप ही के हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच बस एक ही नाम, जिन्होंने धुआंधार बल्लेबाजी की, विस्फोटक बल्लेबाजी की, 10 गेंदों का सामना किया, 7 लंबे लंबे छक्के लगाए, 43 रन बनाए, वो स्वप्नेश वेलिप मैन ऑफ द मैच। सर आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। स्वप्नेश वेलिप मैन ऑफ द मैच। DJ. Welcome to the post-match presentation for the very first semi-final. We have Kishore sir, who's going to give away the man of the match to one and only Sapnesh Velip, who scored 43 of just 10 balls, which includes 7 huge mighty sixes. Sapnesh, please come up and collect your reward. The beautiful trophy in the hands of Kishore sir. Kishore Kudnekar, the social worker of Sukor. Congratulations. Sapnesh, please come. Sir, please. Social worker Kishore Kudnekar is giving away the man of the match. Put your hands together, gentlemen. Very talented Sapnesh Velip, who scored a blistering 43 runs in just 10 balls, which includes 7 huge